Good morning. How are you? Today we will study about motion. By our daily life examples, we can understand which objects are at rest and which objects are in motion. See some example on slide. This is the athlete. Athlete is running. Peacock is flying. There is a motion of simple pendulum. This is the motion of swing. A book lying on the top of the table. Now this is the laptop lying on the table. This simple pendulum, the bow of the simple pendulum lying on the table. This car is lying on the board. So we can say that these three objects are at rest. Now I give motion to the car. So you can say that the car is in motion now. This car is in motion. अब आप देखिए, ये मान लीजिए इस कार का रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं. तो अगर इस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि कार मोशन में है. अभी ये रेफरेंस पॉइंट है और कार हमारी यहीं पर है. इसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट में के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं दिस कार इज एट रेस्ट. देखिए, नाउ वी कैन से दैट कार इज इन मोशन. सो the difference between rest and motion is that if position of object changes with time with respect to surrounding or reference point, then we say that objects are at rest. And if position of object with time changes with respect to surrounding, then we say that objects are in motion. There are a few types. There are some types of motion. First one is rectilinear motion, second is circular motion, third is oscillatory motion, fourth is vibrations, and fifth is periodic motion, sixth is non-periodic motion. See, this is the first motion, rectilinear motion. If path of the object is a straight line, then we say that object perform a rectilinear motion. Here in yellow part there is a blue point. So the path of the blue point is a straight line. The path followed by this blue point is yellow part is a straight line. So we can say that object perform a rectilinear motion because its path is a straight line. If path of the object is circular, then we say that object perform a circular motion. This is the motion of the earth around the sun. Earth revolve around the sun, and at class 9th level we can say that earth perform a circular motion around the sun. The motion of the fan, see the fan is at rest right now. Now if I start it, then point on the arm of the fan perform a circular motion. ये अगर इसके साइड्स घूम रही है तो ये क्या करेगी, एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगी. इसका पाथ क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा. इसलिए ये भी हमारा सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है. नाउ ऑसिलेटरी मोशन. इफ ऑब्जेक्ट मूव परफॉर्म ए मोशन बैक और फोर्थ, अप और डाउन, टू एंड फ्रो, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. And in oscillatory motion there should be a mean position. इस सिंपल पेंडुलम की यहाँ पर मीन पॉइंट होगा, मीन पोजीशन होगी. इस देखिए मीन पॉइंट के दोनों तरफ ये सिंपल पेंडुलम हमारा बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ए ऑसिलेटरी मोशन. इन अनदर केस देयर इज ए स्प्रिंग एंड वन मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग. इसका मीन पोजीशन कहीं यहीं कहीं होगा. अब देखिए, ये इसका जो मास है ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, मोशन ऑफ द मास सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग परफॉर्म ए ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज इट परफॉर्म द मोशन अप एंड डाउन. इन दिस केस मोशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन हो सकती है. इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशंस. Now these are the forks of tuning fork. These are the arms of tuning fork. These arms vibrate. इसका मान लीजिए ये फर्स्ट, इस आर्म का मेन पोजीशन यहाँ है तो ये इसकी आर्म क्या कर रही है, लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होता है. तो जब भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर वाइब्रेशंस
की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी और एम्पलीट्यूड कम होगा, तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन हम बोलेंगे इसको। अनदर एग्जांपल, अनदर टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, इफ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर a fixed time interval या after a equal interval time, then such type of motion are said to be periodic motion. Examples of periodic motions are vibrating tuning fork। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वाइब्रेशनल मोशन का, वो हमारा किसका एग्जांपल है, वो हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ए स्विंग इन द मोशन, जब झूला झूलते हैं या स्विंग का जो एग्जांपल है वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अर्थ is in a orbit around the sun. The motion of the earth around the sun is also an example of periodic motion. ये तीनों एग्जाम्पल हमारे हैं पीरियोडिक मोशन के, because these three objects repeat its motion after a fixed interval of time. That is why these are the examples of periodic motion. Now non-periodic motion. If motion do not repeat itself after a fixed interval of time, then such type of motions are known as non-periodic motion. Examples of non-periodic motions are motion of a bouncing ball under the action of gravity and friction. किसी ग्राउंड पे अगर किसी बॉल को हम बाउंस करवाते हैं तो उसकी जो मोशन होगी वो हमारी नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। दूसरा, रनिंग ऑफ ए बैट्समैन बिटवीन द विकेट्स। तो बैट्समैन का जो मोशन है विकेट के बीच में, वो भी हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जांपल है। नाउ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब इट, दैट इज व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे 5 किलोमीटर 6 मीटर, ये जो लिखा हमने 5 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ पर भी कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर एंड 6 मीटर आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस। Now which device in vehicles measure the distance traveled by the vehicles? Vehicles की डिस्टेंस मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर की ये देखिए रीडिंग, यहाँ पे देखिए 2,20,000, ये यहाँ पर जो रीडिंग है 22,00,004 times 0, 2,20,000। दिस इज द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। दिस रीडिंग shows that this vehicle travel दिस लेंथ अप टू दिस टाइम, इतनी लेंथ ये चल चुका है, ये इसकी रीडिंग को बताता है। तो ये जो ओडोमीटर है ये डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पॉइंट, और वी कैन से दैट इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसे एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ऑब्जेक्ट ए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ एंड इट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, it go from C to D then A, it follow the path, it move from O to A along the straight line path, then again come back along the straight line A to C, ये C पे आ जाता है, O से इस तरह से A पे गया और A से फिर ये C पे आ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमको दोनों निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ निकालने के लिए देखिए यहां से ये पॉइंट हमारा O है, यहां से A, यहाँ पर 60 है, इस A से फिर वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे C है, C पे कितना लिखा हुआ है 25 किलोमीटर लिखा हुआ है और ये भी 60 किलोमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये क्या है फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ऑब्जेक्ट गया ऐसे, O से A गया, OA प्लस A से वापस का आया, पहले तो ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो प्लस AC। अब ये कैसे निकालेंगे, ये OA कितना है 60 प्लस AC, AC कितना हो गया
सी से ए के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे 25 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 25, कितना होगा आंसर 60 प्लस 35 कितना हो गया 95 किलोमीटर। ये हमारा क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दैट इज OC। OC कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। OC इज 25 किलोमीटर। Now there are a few examples of to differentiate between distance and displacement. This is a circle and object moves from point A to point B. अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा A से B जा रहा है, एक सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल की जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की लेंथ हो जाएगी हमारी पाई r। तो एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी है पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस। देखिए ये हमारा सर्कुलर, यहाँ से A से B कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, A से B गया, तो डिस्टेंस कितना होगा इसमें, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितनी है पाई r हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये सेंटर है इसका, तो कितना हो जाएगा, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा डायमीटर के इक्वल, और दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो इस तरह से इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। अगर हमारा पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरा सर्किल कंप्लीट कर देता है, ऐसे A पॉइंट से चला और वापस B पॉइंट आ गया, और A और B पॉइंट दोनों कहाँ हैं, दोनों हमारे एक ही जगह लाई करते हैं, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई r। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी A और A के बीच, A और B के, B और A दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना है 0। तो इस तरह से इस सर्कल के केस, सेमी सर्कल और सर्कल के केस में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हम निकाल सकते हैं। अब आप स्लाइड देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में ये इसका एक्चुअल पाथ है, दिस इज द एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वो हमारी डिस्टेंस होगी, और ये जो यहाँ से ये ग्रीन वाली लाइन है, ये शॉर्टेज जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा होम और स्टोर का, होम और स्टोर के बीच में, होम से अगर कोई पर्सन जाता है, होम से स्टोर जाता है तो 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर वापस आता है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर उधर गया, 3 किलोमीटर इधर आया, इसको हम ऐड कर देंगे, डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे 3 + 3 6 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इस होम पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पर्सन यहाँ से स्टोर गया, स्टोर से वापस आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, दोनों एक ही जगह है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा 0 हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।